Hello, welcome student of standard 9 Hindi medium. We are today learning unit number 5, video number 1, detail of lesson, Rani ki Vav. So, take your notebook, ball pen and write down the important details and it is your homework too. ये आपका होमवर्क भी है, आपको 5 टाइम लिखना है, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, बराबर. So this is the unit number 5 हिंदी मीडियम subject English, unit number 5 रानी की वाव. Here, before the starting the lesson, there are some pre-task. Here is given the, यहाँ आपको सोमनाथ मंदिर का चित्र दिया गया है. Look at this picture of the Somnath temple. Now fill in the blanks using the word in brackets and complete the paragraph. Words are the sea, curved, enchanting, majestic, Somnath, flag, pillars, peak and roof. इतने वर्ड्स दिए हैं यहाँ. ये वर्ड्स का आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करना है. आप देखो इसके अंदर ऑलरेडी गिवन द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. इसको आपकी नोट में लिखना है और साथ में उसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपको लिखना है, बराबर. तो ये चित्र कौन सा है? तो ये सोमनाथ महादेव का मंदिर है. This temple of Somnath is a great architectural example of the Hindu temples. The dais is called शिखरा. The peak, जो उसकी टॉच होती है ना, उसको शिखर कहते हैं. The peak is called शिखरा. These days is also known steeples or dome. तो उसका जो रूफ होता है ना, रूफ, उसे डोम भी कहा जाता है और स्टीपल भी कहा जाता है. तो दिस रूफ इज ऑल्सो नॉन एज स्टीपल और डोम. द टेम्पल फेसेस ईस्ट and has a big central hall with 3 entrances. जो टेम्पल है, मंदिर है, वो पूर्व की ओर मुख है उसका और बीच में एक बड़ा सा डोम है, हॉल है, जिसके 3 मुख्य द्वार है. It has richly curved doorways. The endless days are called स्तंभ. वहाँ असीमित सब पिलर्स है अंदर. देखो कितने पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, उसे स्तंभ कहते हैं, है ना. तो the endless pillars are called स्तंभ. They make it look spectacular. वे अपने आप में बहुत ही अद्भुत लगते हैं. There is days on the tallest peak of the temple. वो जो tallest peak है, शिखर है, वहाँ क्या है? तो वहाँ है flag. There is a flag on the tallest peak of the temple.
we can also see domes. We can also see dash domes. तो जो डोम्स है वो कैसा कलाकृति भरा हुआ वक्राकार सब है, तो कर्व्ड डोम्स आएगा. क्या आएगा? वी कैन ऑल्सो सी कर्व्ड डोम. द होल स्ट्रक्चर लुक्स, पूरा स्ट्रक्चर कैसा अद्भुत दिखता है, सुंदर दिखता है. तो क्या आएगा वर्ड्स? द होल स्ट्रक्चर लुक्स enchanting and majestic. This temple is near the sea. ये दरिया के पास में है ना. This is pre-task A. Here is pre-task B. Look at the picture of Mohabbat Maqbara located at Junagadh and say whether the sentence are true or false. ये चित्र को हमें ध्यान से देखना है. ये चित्र हम पहले ध्यान से देख रहे हैं, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखो. अभी उसके डिटेल में कुछ सेंटेंस लिखे हैं. ये सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं. There are 2 minerals around the मकबरा. क्या आपको यहाँ 2 ही मीनार दिखाई दे रही है क्या? मुझे तो 4 दिखाई दे रही है. 1, 2, 3 एंड 4 है ना. तो ये ट्रू है या फेल्स है, ये हमें लिखना है. बराबर. The domes are full of carving on them. Third, the minarets look beautiful because the stairs are spiral. There are no scope of having a view of Junagadh from the Maqbara. The Maqbara is a king palace. And 6, there are 5 domes on the main structure. अभी ये 6 सेंटेंस है, या तो ट्रू है या तो फेल्स है, खरे या खोटे है. बराबर. ये हमें करना है. बराबर. ये प्री टास्क ए जो था उसके फिलिंग द ब्लैंक्स है. This temple of Somnath is a great architectural example of Hindu's temples. The peak is called Shikhara. This roof is also known as a steeple or dome. The temple faces east and has a big central hall with 3 entrances. It has richly carved doorways. The endless pillars are called stambhas. They make it look spectacular. There is flag on the tallest peak of the temple. We can also see curved domes. The whole structure looks enchanting and majestic. This temple is near the sea. So this is the answer of pre-task A. Now these are the pre-task A and B. We have to answer in this. Now we are going to give you answer of pre-task B.
Here are their answer. There are 2 minarets around the मकबरा. Fails, क्योंकि 4 थे यानी फेल आएगा ये. The domes are full of carving on them. The domes are full of carving on them. हाँ, बहुत ही नक्शी काम किया हुआ उसमें ये था, सब अद्भुत कारीगरी की थी. थर्ड, the minarets look beautiful because the stairs are spiral. है ना, उनके ऊपर देखा ना आपने कि वो जो ऊपर चढ़ने की जो सीढ़ियाँ है वो स्पाइरल है, घूमती हुई जा रही है, तो ये भी ट्रू. 4 नंबर, देयर इज नो स्कोप ऑफ हैविंग अ व्यू ऑफ जूनागढ़ फ्रॉम द मकबरा. फेल्स, क्योंकि बहुत ऊंचा है तो दिखता है. द मकबरा इज द किंग पैलेस. नहीं नहीं, ये किंग पैलेस नहीं है, तो फेल्स आएगा. देर आर 5 डोम्स ऑन द मेन स्ट्रक्चर. तो ये दोनों में से टी और एफ में से आएगा टी. क्या आएगा? टी, क्योंकि ये बात सही है. 5 एक बीच में है बड़ा और आजू बाजू है 4, तो 5 मेन डोम्स है. तो ये प्री टास्क बी के आंसर थे. आपको ये सब 5 टाइम लिखना है. दिस इज प्री टास्क सी. स्टेट which of these should be done or should not be done while visiting the historical monuments. Write yes or no at the end of the sentence. हमें जब भी कोई विश्व धरोहर या तो बहुत ही पुरानी अपने आप में अनूठी होती है ऐसी इमारत या तो कुछ देखने जाना हो, तो इसमें से जो बात बताइए उसमें आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आंसर आपको इसमें लिखना है. बराबर. सो लेट अस रीड इट फर्स्ट. यूज द फ्लैश लाइट इफ डार्क इनसाइड. सेकंड, टच द कर्विंग, फील इट एंड एंजॉय इट, मेकिंग नॉइजेस. 4, to record your visit, carve your name only on the cornerstone. 5, keep the place clean, listen to the guide carefully, scratch the exhibit to check its material. और 8 नंबर, ask question to your teacher or the guides. हमें इसके अंदर यस या तो नो लिखना है. So these are the answer. Use flashlight if dark inside, तो नो, उसके ऊपर फ्लैश नहीं पाड़ना होता है तो नो आएगा, क्योंकि कलर उड़ जाएगा उसका, सब ऐसे करेंगे तो. टच द कर्विंग, फील इट एंड एंजॉय इट. हमें उसको टच भी नहीं करना चाहिए. टच करके हमें उसका एंजॉय नहीं लेना होता है, खाली दूर से देखना होता है, तो नो आएगा आंसर. मेकिंग नॉइजेस, वहाँ बहुत ही आवाज़ करने का होता है, हो है, आवाज़ नहीं करने का होता है, बिल्कुल पीसफुली देखने का होता है. 4 नंबर, टू रिकॉर्ड विजिट, कर्व योर नेम ओनली ऑन द कॉर्नर स्टोन. उसका विज़िट करना है, आपने वहाँ मुलाकात ली, उसकी कुछ नोन लिखने की नहीं होती है कि कोई भी ऐसे नक्शी काम की वो पत्थर पर अपना नाम नहीं लिखना होता है, तो नो आएगा आंसर.
5 नंबर, कीप द प्लेस क्लीन। हाँ, जगह तो साफ सुथरी होनी चाहिए और रखनी भी चाहिए, तो यस। लिसन टू द गाइड केयरफुली। आप जो गाइड को लेके गए हैं, कौन? गाइड, जो आपको समझाने वाला होता है, बताने वाला होता है, ऐसी व्यक्ति जो साथ में होती है वो उसे गाइड कहते हैं। तो गाइड अगर साथ में है तो उसे वो क्या बता रहा है वो ध्यान से सुनना चाहिए, बराबर है। 7 नंबर, स्क्रैच द एग्जिबिट टू चेक इट्स मटेरियल। कि भाई वो जो सब कुछ है, भाई इसको कलर कौन सा लगा है, तो कलर निकाल के देखना चाहिए क्या? वो खंभा जो है वो कौन से उसको खुरच के देखना चाहिए क्या? नो नो नो, उसको टच भी नहीं करना चाहिए। तो आंसर आएगा नो। और 8 नंबर का है क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन टू योर टीचर और द गाइड। तो इसका आंसर आएगा यस। ये लिखा नहीं है, आपको यस लिखना है, बराबर। तो ये था प्री टास्क सी।